Afternoon, everyone. Schools that include educational trips as part of curriculum provide students the joy of discovery and opportunity to learn new things through level. Educational tours are a great way for students and educators to observe, interact, and to grasp theory practically. An educational tour offers students of all classes an opportunity for a rich immersion experience. While an educational tour is a great fun, it differs from a vacation, typically led by a teacher and group chaperone. As such, trips provide invaluable global learning. Students get the real life experience of educational trips to places like science museum of history and arts, and places of research, which helps them in exploring a different side of their subject and establishing a deeper connection with the study. Students gain knowledge and upgrade their skills by using the concepts they newly learn. Educational tours play an important role in educating students in a practical and interesting manner. Something that is seen in real can be easily perceived that something that we simply read in book. So, taking students to trips that will relate to their academics can help them learn much better. Educational tours can also be a way to fun and recreation. Every school must encourage students to participate in educational tours. A part of curriculum is a good idea to fine tune students' knowledge. Educational trips form a valuable part of curriculum for students, making educational tours an essential part of students' academics and an effective idea to motivate them to learn more. The basic reason for educating students is to let them know more than dig deep into many concepts and explore them. This cannot be fulfilled only with the help of books and classroom learning. To explore deeply, students require more and more awareness and knowledge on the subjects they are reading. Such a knowledge transformation can happen only with the help of following the practice of education too, so that students learn more effectively. Education tour can impart learning of any field. There are places then can be explored to learn science, history, geography, and much more. All that matters is the initiatives the staff to schools taking to help students to learn through such trips. Participate in such tour. For this, staff can give a brief on the places they are going to visit and important of those places. This minds of students. Staff can also organize a competition after the tours so that they can test how much the students have learned through educational trips. Only through initiatives we can encourage students to actively study and get through tours so that they can test how much the students have learned through educational trips. Only through initiatives we can encourage students to actively study and get through examinations. Giving the chance to students to decide on the kinds of places they wish to explore is a good way to make education tour a successful attempt. Parents should also let students to visit new places which help them learn and new things. We visit Taj Mahal, Red Fort, Sikandra, Akbar Tomb, and many places, historical places in Agra, and give the more knowledge of our students about by the guides or by help of staff members. Thanks you to all of you.
ये पॉइंट का नाम खाली अकबर टोम है, सिकंदरा नहीं। सिकंदरा जो नाम है वो सिटी का नाम है, गांव का, क्योंकि यहाँ मुग़लों से पहले लोदियों का राज था। यहाँ आए थे सिकंदर लोदी 1489 में। उन्होंने गांव को आबाद किया, इसका नाम सिकंदरा रखा गया और अपना कैपिटल बनाया था 1492 में। उनके बेटे थे इब्राहिम लोदी, जो फर्स्ट मुग़ल बाबर से उनका फाइट हुआ था 1526 में पानीपत हरियाणा में। बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। वो सामने मार दी थी, इसलिए बोलते वहाँ पर सिकंदर लोदी की बॉडी को कुछ समय के लिए रखा गया था। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली लोधी गार्डन। ये सिकंदर लोधी का समाधि कहाँ है? दिल्ली के अंदर। इब्राहिम लोधी का समाधि कहाँ है? पानीपत हरियाणा में। उस महल को बनाया था इब्राहिम लोधी ने एक सराय के लिए, यानी जो भी यहाँ से राह चलने वाला मुसाफिर गुजरेगा वो अपनी सेफ्टी के साथ आराम करके चला जाएगा। वो बिल्डिंग बनाई गई थी 1517 में। फर्स्ट मुगल जो बाबर थे ना, पहली बार आगरा आए थे 1526 की जंग जीतने के बाद। वहीं पर उनका वेलकम किया उनके बेटे हुमायूं ने। 7 साल रहने के उपरांत उनकी आखिरी ख्वाहिश ने अपने बेटे से कहा, हुमायूं से, हमारे मरने के बाद हमारी कब्र यहीं बनाने आराम बाग के अंदर। जब उनका देहांत हुआ 1530 में, उनके बेटे इतने पावरफुल नहीं थे हुमायूं, उनको परेशान कर रखा था शेर शाह सूरी ने, जो सरहिंद का बादशाह थे पंजाब अफगानिस्तान। इसलिए बाबर का कब्र काबुल में है। जब गद्दी संभाली हुमायूं ने 1530 से 1556 तक, बीच में उनका राज छीन लिया गया था शेर शाह सूरी द्वारा 5 साल के लिए। 1539 में काबुल के शासक के साथ दोबारा हमला किया, अपने राज्य को वापस हासिल किया हुमायूं ने। हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से पैर फिसलने से उनके साथ वो हादसा हुआ जहाँ उनकी डेथ हो गई। तो उनका टॉम बनाया गया दिल्ली के अंदर, हुमायूं टॉम। उनके बेटे थे अकबर, जब भी आप देखने आए हैं। ये जो महल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कांच महल। इसके अंदर कोई कांच नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, फिर भी ये कांच महल कहा जाता है। इसलिए ऊपर जो ये पत्थर दिख रहे हो वो कलर में तो कांच के माथे, इसको कांच महल का नाम दिया गया। दूसरा इसका नाम आता है हरम महल। इसको बनवाया था जहांगीर बादशाह ने अपने आराम करने के लिए। मुगल बादशाह में जहांगीर एक ऐसे बादशाह थे आगरा किले के अंदर। आपने आगरा फोर्ट देखा? देखा है? ज़्यादा है, तब उनको बताया राजपूतों की पावर ज़्यादा है। जब उन्होंने अटैक करने को कहा आमेर किले को, जयपुर का जो आमेर किला है, तो कछवाए राजा भारमल का किला था। उनकी बेटी थी जोधाबाई, मानसिंह की बहन। बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा, आमेर को वापस करने का। जोधा लाइक नहीं करती थी, क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम थे। फिर भी जोधाबाई ने अपने परिवार, अपने प्रजा खातिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ शर्तें रखी जो बादशाह अकबर ने मंजूर की। उनके तहत उनकी शादी हुई। शादी होने से बादशाह अकबर की पावर और रिलेशन दोनों बन गए। फिर बादशाह अकबर ने, बाद में अकबर बादशाह ने धर्म बनाया था दीन-ए-इलाही। सन 1500 में 2 ही ग्रेड हुए, अकबर एक अशोक, तीसरा कोई ग्रेड नहीं है। अशोक द ग्रेट जो आज हमारे पैसे में बहुत चलती है, क्योंकि ये सभी धर्म को मानते थे। इसलिए लास्ट में अकबर बादशाह ने वो लोग सब जानते हैं ना। वो सीकरी से ज़्यादा मेहनत वसूल हो गई थी। उनका नाम था रुकैया बेगम। इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश तमन्ना थी बादशाह सलामत को बेटी या बेटा देंगे, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, सबसे बड़ा पद मिलेगा। बट अकबर बादशाह की तकदीर में औलाद थी नहीं। इसी बात से अकबर बादशाह बहुत परेशान रहते थे। उनके सलाहकार मंत्री उनको सलाह देगा फजल को सीकरी जाइए। वहाँ पर एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने कहा मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद दीजिए। देने वाला परवरदिगार है, मैं तो खुद इसका एक फ़कीर हूँ, मगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए दुआ की जाएगी। मगर हमारी एक शर्त होगी, जो बच्चा अपने पैदा होगा, बच्चे का जो नामकरण करेंगे आप हमारे नाम के ऊपर करेंगे, ताकि आने वाले क्या कैनन एचडी।
सेवा हुआ। आज होली पब्लिक स्कूल के बच्चों को एजुकेशन टूर पर ले जाया गया, जहाँ पर सबसे पहले ताजमहल पर उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर बच्चों को विभिन्न तरीके से उनको जानकारी दी गई कि ताजमहल कहाँ पर है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया है और किस लिए बनवाया है। ये सब कुछ जानकारी वहाँ पर दी गई, क्योंकि ये बच्चे उसका फिगर, सीनरी, पिक्चर्स बुक में देख लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं होता। इसके बाद बच्चों को रेड फोर्ट ले जाया गया, जहाँ पर जोधाबाई महल और नूरजहाँ का महल और शाहजहाँ का महल दिखाया गया। इसके बाद बच्चों को अकबर टॉम ले जाया गया। कुल मिलाकर आगरा के विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेस पर बच्चों को विजिट कराया गया और बच्चों को विभिन्न प्रकार की नॉलेज दी गई, क्योंकि बच्चे अभ्यास है किताबें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। साथ ही इससे बच्चों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, एंजॉय किया बच्चों ने, और ये एक अच्छा भ्रमण रहा, जिसमें पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। साथ ही हमारे साथी वास्तु यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये हमारा शैक्षणिक जो भ्रमण था वो ये अच्छे से हुआ, संपन्न हुआ, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसमें आप लोग कहाँ घूम के आए? ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा पार्क और गुरुद्वारा। सिकंदरा पार्क। और उसके बाद कहाँ गए? शाइनी टेम्पल। अच्छा, यस। अच्छा, सामने बैठे हो, बोल सच्चे दरबार की। अच्छा, ताजमहल में आपको कैसा लगा मैम घूमने में? कितना अच्छा, थोड़ा बता सकते हो? हाथों से बता दो, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इतना मतलब आपने वहाँ क्या क्या देखा ताजमहल में? ताजमहल में मकबरा देखा है ना, जी, और भीड़ बहुत थी बस। भीड़ तो इसमें बहुत कम थी, आप जिस हिसाब से आप भीड़ कई बता रहे हो। भाषाएं सुनी, कई लोगों को देखा है ना, और बहुत सारी चीजें देखी। अच्छा, ताजमहल के बाद कहाँ गए? कैमरे में देखते। लाल किला गए, सिकंदरा ने। आपने लाल किले में क्या देखा? थोड़ा
अच्छा, सिकंदरे में क्या देखा आप लोगों ने? बताओ। अकबर का मकबरा था और क्या था? शीशे वाला महल नहीं देखा? देखा था। उसमें देखा था? उसमें कितनी डिजाइन बनी हुई थी? ये नहीं पता भैया। शीशे वाले महल में कितने डिजाइन थी भाई? 5 तरह की थी भैया। अच्छा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट देयर कि वहाँ पे सबसे जो अच्छी जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग थी, रिपीटिंग वॉइस क्लियर आ रही थी एकदम। आप प्रॉपर वे में वहाँ पे क्लैप कर रहे थे एंड द वॉइस वाज कमिंग बैक, आपके कानों में प्रॉपर सुनाई दे रही थी। और बस मुझे यही वहाँ पे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा था वहाँ पे देखने के लिए एंड बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा था। एंड थैंक्स टू ऑल जो सर ने मुझे भी मौका दिया यहाँ पे आने का और मुझे भी बाकी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा।